So grid training जो है it is developed by Blake and Mountain and it is a structured and a systematic OD program. Grid training जो है Blake and Mountain ने बनाई है और ये एक structured एक systematic OD का program है, ठीक है. Grid training is a method developed by Blake and Mountain. ये method based है ब्लेक एंड माउंटेन के मैनेजरियल ग्रिड पे और ये मेथड एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक ओडी प्रोग्राम है. इट्स स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक ओडी प्रोग्राम. ओके. 1. It is based on the managerial grid by Blake and Mountain. 2. It's a systematic and a structured OD program. It aims to enhance the effectiveness of individuals, groups, intergroup and organization. कोशिश यही रहती है, इसकी एम यही है कि इफ़ेक्टिवनेस बढ़े एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की, एक ग्रुप की, इंटरग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है. सो इट एम्स एट एनहांसिंग द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ individuals, of groups, of organization as whole. Right? So this OD program targets improvement at multiple levels. ग्रिड ट्रेनिंग एक ऐसा OD प्रोग्राम है जो कि इम्प्रूवमेंट की तरफ टारगेट करता है और बहुत सारे लेवल्स पे. सो दिस OD प्रोग्राम टारगेट्स इम्प्रूवमेंट एट मल्टीपल लेवल्स, whether it be individual level, group level, intergroup level या organizational level. So this OD program targets improvement at multiple levels, individual, group, intergroup and organization. ये एक comprehensive program है because it employs various tools, various methods that enable the participants to evaluate their strengths and weakness. ये एक ऐसा comprehensive program है जो कि बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करता है. सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दैट एम्प्लॉयज वेरियस टूल्स एंड मेथड्स. इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दैट एम्प्लॉयज वेरियस टूल्स, वेरियस मेथड्स दैट एनेबल द पार्टिसिपेंट्स. ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसके द्वारा बहुत सारे टूल्स का, बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पार्टिसिपेंट्स को इनेबल किया जाए कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को इवैल्यूएट करें, ताकि सो दैट दिस टूल्स, दोस मेथड्स कैन enable the participants to evaluate their skills and their weaknesses as well. Now it emphasizes on developing skills, knowledge and processes that are essential for effectiveness across the organization. It emphasizes on किस पे फोकस है ग्रिड ट्रेनिंग में? On developing skills, knowledge and processes. इससे skills develop होती है. emphasizes, इसका main focus रहता है developing skills को develop करने पे, ठीक है. it emphasizes on developing skills, knowledge को develop करने में, processes को develop करने में. वो processes जो कि काफ़ी essential हैं for effectiveness across the organization. So grid training emphasize करती है on developing skills and developing knowledge and processes. और processes को develop करना, ठीक है. skills, knowledge and processes that are essential for effectiveness across the organization, ठीक है, जो ज़रूरी हैं, essential हैं for effectiveness across organization. What are the objectives of grid training? Now, grid training aims to achieve several specific objectives. Grid training का मकसद ये होता है, एम ये होता है to achieve several specific objectives. Grid training aims to achieve several specific objectives, ठीक है. Grid training द्वारा कई सारे specific objects को प्राप्त किया जाता है जो OD लेके आते हैं, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. फर्स्ट इज़ टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटरैक्टिव सिस्टम. ग्रिड ट्रेनिंग के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को एज इंटरैक्टिव सिस्टम समझा जा सकता है. सो ग्रिड ट्रेनिंग इज इट
aim, its objective is to study the organization as an interactive system. इसका एक मेन एम ये भी है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझना एज एन इंटरैक्टिव सिस्टम की, मतलब यहाँ इंटरैक्शन हो रही है, ठीक है. इट एम्स टू स्टडी एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटरैक्टिव सिस्टम. ओके, इट एम्स टू स्टडी एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटरैक्टिव सिस्टम. Now participants are encouraged to view organization as a system. Participants जो भी हैं उनको encourage किया जाता है कि organization को देखा जाए as an interactive system. ठीक है, organization को view करना as an interactive system जहाँ पर every part is interdependent. So interactive है यानी कि हर एक पार्ट या हर एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का वो इंटरडिपेंडेंट है. सारे ही ग्रुप्स इंटरडिपेंडेंट हैं. सो एवरी पार्ट इज़ इंटरडिपेंडेंट. थ्रू दिस पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल्स लर्न टू यूज़ एनालिटिकल टेक्निक्स. अब इंटरडिपेंडेंट है तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन को जब हम एज इंटरैक्टिव सिस्टम देखते हैं, इसी पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल्स लर्न करते हैं टू यूज़ द एनालिटिकल टेक्निक्स, कि वो एनालिटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करें टू डायग्नोस एंड एड्रेस द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स. ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं लोग डायग्नोस करना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस करना, उनको एड्रेस करना. ठीक है, इंडिविजुअल्स लर्न टू यूज़ analytical techniques to diagnose and address organizational problems. Then second is promoting systematic change. So grit training highlights the importance of structured and planned change within an organization. तो यहाँ पर ये है कि मतलब ये भी ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही प्लान तरीके से ग्रिट ट्रेनिंग की जाती है. सो इट प्रमोट्स a systematic change. The training highlights the importance of structured and planned change. Grit training highlights करती है कि कैसे structured और बहुत ही planned तरीके से change आता है एक organization में. Participants learn the rationale behind systematic and change and are better prepared to support such change. अब participants जो हैं वो rationale समझते हैं systematic change के पीछे क्या है, और इसी तरह से बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि और सपोर्ट कर पाते हैं इस चेंज को. सो पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस एंड रैशनेल ऑफ सिस्टमैटिक चेंज. दे आर बेटर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट सच चेंजेस फर्दर. थर्ड पॉइंट इज बीइंग एबल टू इवैल्यूएट द लीडरशिप स्टाइल. ठीक है, इवैल्यूएटिंग लीडरशिप स्टाइल एंड पार्टिसिपेशन टेक्निक. Significant focus is on assessing the leadership style and the participatory methods. तो significant focus है leadership style को assess करने के पर और participatory methods पे. So the goal is to guide the participants towards using the leadership techniques that yield positive results and promote engagement. So goal यही है कि पार्टिसिपेंट्स को ये गाइड करना कि उनके लिए बेस्ट लीडरशिप टेक्निक कौन सी है दैट यील्ड्स पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड देन प्रमोट एंगेजमेंट ऑफ दोस पार्टिसिपेंट्स. वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहें अपने काम में. द प्रोसेस ऑफ ग्रिट ट्रेनिंग रिवॉल्व्स अराउंड ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल स्कूल. ग्रिट, अ फ्रेमवर्क दैट एनकरेजेस डेवलपमेंट in key managerial areas like problem solving, communication and teamwork. So ये ब्लेक माउंटेन के मैनेजरियल ग्रिड पे बेस्ड फ्रेम है, जो कि एक फ्रेमवर्क है जो इनकरेज करता है कि डेवलपमेंट इन की मैनेजरियल एरियाज, है ना. ऐसा फ्रेमवर्क है ये ग्रिड ट्रेनिंग जो डेवलपमेंट को इनकरेज करता है कि मैनेजरियल एरियाज में लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया. ठीक है, इन एरियाज़ में डेवलपमेंट को इनकरेज करता है.
The central objective is to develop a 9-9 managerial style. So इसका central objective यही है कि 9-9 managerial whole orientation is to develop 9-9 managerial style through the application of behavioral science knowledge. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव यही है कि 9-9 मैनेजरियल स्टाइल बने जो कि बताता है हाई डिग्री ऑफ कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड ऑल्सो फॉर प्रोडक्शन. तो ये मैनेजरियल स्टाइल जो है ये गेन करना चाहते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस नॉलेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6 phases ऑफ ग्रिड ट्रेनिंग. सो द 6 phases ऑफ ग्रिड ट्रेनिंग आर. ग्रिड ट्रेनिंग पहले तो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें कि 6 सीक्वेंशियल फेजेस हैं, each focusing on different aspect of organizational and personal development. So grid training में हर एक sequential phase जो है वो focus करता है different aspects पे of organizational and personal development. ठीक है, each phase focuses on different aspects of organizational and personal development. तो यहाँ पर हर एक फेज़ का फोकस एक अलग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट के एक अलग एस्पेक्ट पे है. पहला है फेज़ मैनेजरियल ग्रिड. द फर्स्ट फेज़ फोकसेस ऑन असेसिंग एंड इम्प्रूविंग द मैनेजरियल स्टाइल. पहले फेज़ में असेस करते हैं, हम पहले फोकस कर रहे हैं ऑन असेसिंग एंड इम्प्रूविंग मैनेजरियल स्टाइल. So participants engage in exercises to enhance their problem solving, communication and team collaboration. Participants जो हैं ऐसी exercises में engage होते हैं जिनके द्वारा उनकी communication skills बढ़े, उनकी problem solving skills abilities बढ़े और collaboration team collaboration बढ़े. So participants engage in exercises to enhance their team collaboration, problem solving skills and communication skills, right? So through practice and self assessment individuals aim to adopt the 9-9 managerial style. practice के साथ और खुद को assess self assessment करके individuals का aim यही होता है कि 9-9 managerial style बनाया जाए which balances the people oriented and task oriented approach. So through practice, through self-assessment, individuals aim to develop 9-9 managerial style, which balances people-oriented and task-oriented approach. Okay? So practice करके और self-assessment करके individuals का aim यही रहता है कि 9-9 managerial style बनाया जाए जिसमें जो कि balance people-oriented और task-oriented दोनों approaches को balance करती है. Phase 2 is teamwork development. This phase focuses on fostering the teamwork by analyzing team culture, tradition and dynamics. Second phase जो है ये टीमवर्क बढ़ाने, टीमवर्क को फॉस्टर करने, टीमवर्क को डेवलप करने का काम करता है. By analyzing team culture, कैसे टीम के कल्चर को एनालाइज करना, ट्रेडिशंस को, डायनेमिक्स को एनालाइज करना. So this phase focuses on fostering टीम वर्क. इस फेज़ का फोकस है टीम वर्क बनाना, एनालाइजिंग द टीम कल्चर, टीम के कल्चर को बनाना, डायनेमिक्स को अच्छा करना, ट्रेडिशंस को अच्छा करना.